Hello, welcome to our channel Prudent Institute of Spoken English and I just warm welcome you on this platform. So कैसे हैं आप सब लोग? So as I promised you कि that I will let you know the exactly basic of English. So we are here and we are here with a very wonderful session of a basic English grammar. तो आज हम बात करेंगे कि लाइक बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्या होती है. हम प्रोनाउंसिएशन से लेके हाउ मेनी साउंड्स एंड ऑल हम सब की बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो बने रहिए हमारे साथ अंत तक. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो if we just talk about the English language, so how many, okay, just talk about, if we just talk about like a basic English, what basic English? बेसिक इंग्लिश की हम जब बात करते हैं तो बेसिक इंग्लिश में हमारे माइंड में क्या आता है एग्जैक्टली कि बेसिक इंग्लिश क्या होगी. मे बी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे, साउंड के बारे में बात कर रहे होंगे, किसके बारे में बात कर रहे होंगे. सो हम वन बाय वन करके हम सब चीज देखते हैं. ओके, अगर हम बेसिक इंग्लिश की बात करूं तो कैन यू टेल मी लाइक व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. English is a language. So maybe it's, if it is a language, so maybe it has a like a sounds. Yeah, definitely. So it has some sound. कुछ sounds की बात करें हम तो how many sounds are there in English? If we just talk about like a sounds, like there are many sounds, not a many sounds, there are like 107. What? 107 sounds are there in English. If we just talk about, I'm just talking about the entire English world. Okay, so just keep in mind. But wait a minute, like how many words we use, how many sounds we use, that's the matter. So we use how many sounds? How many sounds we use? How many sounds we use? हम कितने साउंडों का यूज करते हैं, दैट्स द मैटर. ये मैटर करता है. तो हम यूज करते हैं 44 साउंड्स. कितने? 44 साउंड्स. हम 44 साउंड्स का यूज करते हैं. ओके, हाउ मेनी साउंड्स? 44 साउंड्स का हम यूज करते हैं अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में. हमारी स्पोकन इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो हम इतने साउंड्स का यूज करते हैं. कुछ साउंड्स होते हैं हमारे, अगर मैं बात करूं, कम हियर, कुछ साउंड्स की अगर हम बात करूं तो हमारे साउंड्स होते हैं डायग्राफी होते हैं हमारे साउंड. डायग्राफ साउंड होते हैं हमारे. कुछ जो साउंड्स क्या होते हैं लाइक एस एच, सी एच, ये सारे हमारे साउंड्स, दो साउंड मिलकर एक वर्ड बनता है. कितने मिलकर? लाइक दो वर्ड मिलकर एक साउंड बनेगा. ओके, एक होते हैं हमारे टिप्टोंग्स. मे बी यू आर जस्ट वॉचिंग इन द लिस्ट, यू कैन सी द लिस्ट ऑफ दिस. एक होते हैं हमारे क्या? टिप्टोंग्स. टिप्टोंग साउंड्स होते हैं हमारे. यू कैन सी इन द लिस्ट बिलो. आप लिस्ट में बखूबी देख सकते हैं इनको. ओके, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट, ओके, अगर हम साउंड्स की बात करें तो हाउ मेनी वॉवल साउंड्स आर देयर? अगर हम बात करें तो हाउ मेनी साउंड्स ऑफ वॉवल्स आर देयर? वॉवल साउंड की बात करें हम, किसकी? वॉवल साउंड की बात कर रहे हैं हम. वॉवल साउंड, वॉवल्स, साउंड्स.
vowel sounds and consonant sounds. Consonant sounds. Vowel sounds and consonant sounds. So how many consonant sounds are there or vowel sounds are there? So there are how much? There are 20 vowel sounds. Vowel sounds. How much? 20 vowel sounds are there. You can see in the list also that how many vowel sounds are there. हमारे कैसे vowel sounds बनते हैं. And rest are consonant. How much? 44 or 24? 24 sounds are consonant. "24 sounds are consonants." ओके, हम वॉवल को लाइक जज कैसे करते हैं कि लाइक हाउ मेनी वॉवल साउंड्स, एंड वॉवल साउंड हम जज कैसे करेंगे कि लाइक कौन सा वॉवल साउंड है. ओके, तो आई जस्ट गिव यू वन डेफिनेशन ऑफ दिस. मे बी you would know or you don't know about that. The vowel sounds are those sounds which generate from a vocal cord. Did you get my word? The vowel sounds are those sounds which generate from vocal cord. This is a vocal cord. This is called a vocal. Like the word which generate from a vocal cords are known as vowel sounds. Like if you just pronounce like any vowel sound like go, like it will hit here in your vocal. So these all are vocal sound and these all are हमारे क्या है, vowel sounds है हमारे. तो इसकी definition लिखते हैं हम. The sounds which generate from vocal cord. Vocal cord are known as vowel sound. Vowels sound. Clear? So I hope this is clear to you कि हमारे vowel sounds क्या होते हैं. Vowel sounds are those sounds which generate from a vocal cord. What? The sounds which generate from a vocal cords are known as vowel sounds. Clear? Okay. Let's go ahead. So maybe you have got this like how many vowel sounds are there. So the vowel sounds are as much. Okay. Now if we just talk about our sounds, हमारे साउंड्स की अगर हम बारे में बात करें तो लाइक साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं. अगर हम बात करें साउंड्स की, ओके, हम अगर बात करते हैं लाइक ये तो हमारे क्या होगा, ये हमारे वॉवल साउंड्स होगा विच आर प्रोनाउंस. ओके, लाइक इफ दिस इज यूज्ड इन अ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, लाइक इफ यू प्रोनाउंस वर्ड्स मे बी दैट वुड बी यूज्ड. अगर हम इनिशियली हमारे वॉवल वर्ड्स की बारे में बात करें तो हमारे लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स वी हैव, how many letters we have, how many letters we have, we have 26 letters. How much? 26 letters we have. If we just talk about a vowel, if we just talk about a consonant, if we just talk about a vowels and if we just talk about a vowel consonant, अगर हम consonant vowel की बात करते हैं तो यहां पर होते हैं हमारे कितने 5. ये पता होगा आपको कौन कौन से होते हैं. प्लीज लेट मी नो. ए, ई, आई, ओ, यू, दीज ऑल आर vowel letters. ये letters हैं हमारे. These are vowel letters. If we just and the remainings are, and 21s are consonant.
कॉन्सोनेंट साउंड्स। सो अगर हम लेटर्स की बात करेंगे तो लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स वी हैव, तो वी हैव लाइक 26 लेटर्स। नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट लाइक हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, so like there are 5 vowels which all are A, E, I, O, U. These all are vowels. Got it? And if we just talk about a consonant, so there are consonant sounds. Now अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर how many sounds we have and किस प्रकार के, कैसे कैसे प्रकार के हमारे पास साउंड होते हैं, तो यहाँ पर हम साउंड के बारे में भी जान लेते हैं। प्लीज वॉच हियर, maybe you have noted down. And if you have just noted down, so I would like to rub this. I would like to rub this. All things are very important. Please keep noting down. Okay. अगर हम बात करेंगे यहाँ पे English या फिर spoken English types, स्पोकन इंग्लिश टाइप्स, कि हमारी स्पोकन इंग्लिश के कितने टाइप्स, हमारे क्या मीन कितनी लाइक वेज होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बात हम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी वेज, नॉट अ वेज कि किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। मे बी सम वर्ड्स आर लेजी, लेजी साउंड्स, right? Lazy sounds, long sound, and short sound. What did I say? So how many types we have? Like a lazy sounds we have a long sounds we have, and we have short sound. Okay. अगर हम lazy sounds की बारे में बात करें, is it visible to all? Please do let me know. अगर हम lazy sounds की बारे में बात करें तो लाइक मैं बोलता हूँ आपसे egg, it's very lazy sounds, egg. And if we just talk about like next one, like today, this is a lazy sounds. If we just talk about a long sounds, how many long sounds we have? Like sheet, beat. And if we just talk about beach, so these all are long sounds. And if we just talk about a short sound, so how many short sounds? Like we have a lot of sounds. So I'm just telling you that only just types. First, short sound, but this is very short, and shit, this is very short. And if we just talk about a long, like sheet, almost whenever you are just getting a one vowel, please do hear my talks carefully. Like if we are just having a one single vowels in a word, like you, like I, maybe it will always give you a what? Short sound. Like put, but, shit, these all are. So if we are just having a what? If we just having one vowel, so it will always give you what? A short sound. And if we are just having two vowels together, it will always give you a long sound, right? So these all are us. Maybe you have learned this कि like हमारे short sounds क्या होते हैं? हमारे short sounds are those sounds which contain only a single vowel in that word, like but, shit, put, rub. These all are short sounds, and a long sounds and a lazy sounds we have. Okay, maybe you have got this whatever I have written on the board. Please just note it down so that I could remove it, and I have to teach you more things. Please do. I'm just giving you time. Okay, you can just back the video and you just watch that. I'm just rubbing that.
Okay, so I hope it's clear to all. Okay, just rub it. If that is not visible to you, so I'm just letting you know. Okay, what is that? That is but, put, shit, hurt. These all are short sounds. Maybe it's not visible. I'll take care of this. I'm just rubbing it. Okay. We'll have to do must things now. Should I rub that too? Yes, I should. In the many books, you if we're just getting like there are like 19 vowels, but ऐसा almost नहीं होता. Okay, but you will get definitely like in many books you will get like a 19 vowels, but that's not. We have 20 vowels sounds. Or just come to the point. अब हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक की कि बेसिक क्या. ये तो हमने ओवरव्यू लिया कि एग्जैक्टली इंग्लिश में हाउ मेनी साउंड्स एंड ऑल आर देयर, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर. ओके, नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट. अब हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? कुछ हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स. सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी हैव लाइक कौन कौन से? ही, वह, शी, वह, बट फॉर फीमेल इट, यह, वह. दिस इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, non-living things which does not contain a breathing. And when it comes to a name, when name comes, it always counts in singular. Name, नाम. जब किसी का नाम आता है लाइक टेबल, चेयर, फैन, कुर्सी वगैरह वगैरह. सॉरी. ओके, सो दीज आर ये हमारे सिंगुलर साउंड्स होते हैं. सिंगुलर को हम वैसे बेसिकली बोलते क्या है हिंदी में? एक वचन. एक वचन. When there are like a single person, that would be called a singular. And if we just talk about what? If we just talk about plural. अगर हम plural की बात करते हैं वहीं पे in the same case, plural. प्लूरल का क्या कहते हैं? बहुवचन. प्लूरल क्या होता है? बहुवचन. कुछ बहुवचन के भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे डेफिनेटली. तो इसके सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं. प्लीज वॉच हियर. आई, मैं, वी, हम, यू, आप, तुम. राइट, आप, तुम और दे. वे भी बोल दो आप इसको, वे सब भी बोल दो, नो प्रॉब्लम. दैट विल बी काउंट इन प्लूरल. सो प्लूरल इज बहुवचन. व्हेन एक से ज्यादा दो होते हैं, इट्स मीन दैट इज कॉल्ड अ प्लूरल. एक से ज्यादा दो, it's plural. Okay, so these all are subjects की बारे में हमने बात की है, अपने subjects के बारे में. Okay, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप किसकी? Please do it. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर helping verbs की, किसकी? Helping verbs की. This is very important. हेल्पिंग वर्ब्स की बारे में बात करते हैं आपसे. हेल्पिंग वर्ब्स. तो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपसे बात करूं तो इनिशियली हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी होती है वो क्या क्या होती है? इनिशियली हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है बी, डू और हैव.
ये क्या होती है हमारी, ये हमारी इनिशियली होती है वर्ब्स। इन्हीं की फॉर्म से सारी फॉर्म्स जनरेट हुई हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ओके, बी की फॉर्म की, अगर मैं बी की फॉर्म की प्रेजेंट की बारे में बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट फॉर्म्स के बारे में बात करूं जो बी से जनरेट हुई है, कहां से, जो बी से निकली हैं फॉर्म्स, बी की, बी इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ देम, दिस इज द सब फॉर्म ऑफ दैट, हम कह सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट की बारे में बात करूं तो प्रेजेंट की फॉर्म होती है इज एम आर। कोई पूछेगा हमसे बी इज एम आर कहां से आई है, तो इज एम आर आई है बी की फॉर्म से। बी की प्रेजेंट फॉर्म को हम इज एम आर कहते हैं। अगर वहीं मैं बी की फॉर्म को पास्ट की बात करें, बारे में बात करूंगा, पास्ट में क्या कहेंगे, तो पास्ट में कहेंगे हम वॉज वर, वॉज स्लैश वर, राइट। और अगर मैं फ्यूचर की बात कर लूंगा तो फ्यूचर में देयर इज नो वर्ब्स, बी खुद ही आता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म के साथ, और इसके साथ सिर्फ ये लगता है विल, इसके साथ लग जाता है विल बी, तो बी यहां पर खुद ही आता है, विल बी, शैल बी, नहीं सेल नहीं आया है ना विल आया है। सेल और विल तो इट्स अ मोडाल्स, ये मोडाल्स होते हैं हमारे, बट हमारे बी यहाँ पर खुद एक अपनी खुद फॉर्म लेकर आता है यहाँ पर, तो बी यहाँ पर सेल बी और विल बी का यहाँ पर यूज होता है, राइट गाइज। तो मैंने बताया आपको विल बी की फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वॉज वर एंड फ्यूचर फॉर्म विल बी एंड शैल बी। आई होप यू गॉट दिस। अगर हम बात करते हैं किसकी, डू की फॉर्म, तो डू की फॉर्म की बारे में अगर हम बात करें तो डू भी एक खुद एक फॉर्म होती है, डू भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब होती है, और हमारी डिड भी एक फॉर्म होती है और वर्ब होती है, और डू डिड और डज के बारे में बात करूं, डज भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और हमारी वर्ब भी होती है। इनिशियली ऐसा होता है ना कि लाइक जो हमारी वर्ब बन सकती हैं उन्हीं को हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, वो बनती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अगर हमने किसके बारे में बात कर ली, यहाँ पर हमने डू की बारे में बात कर ली, किसके बारे में, डू के बारे में। अगर यहाँ मैं बात कर रहा हूं मैं किसकी, हैव की, अगर मैं यहाँ पर हैव के बारे में बात कर रहा हूं तो हैव खुद एक फॉर्म होती है, एक वर्ब भी होती है और एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है हैव। और एक बारे में बात करूं हैज नहीं होती वर्ब, बट ये हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक हमारी होती है हैड। अगर मैं बी की फॉर्म की बारे में बात करूं, जैसे कि बी की अगर मैंने बात कर ली आपसे, अगर मैं इनकी भी फॉर्म्स की बात करूं, जैसे कि बी की ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज, और इसकी अगर मैं थर्ड फॉर्म के बारे में बात करूं, किसकी, थर्ड फॉर्म के बारे में बात करूं, तो इसकी फॉर्म होती है बीन। तो बी वॉज बीन इसकी ओरिजिनल फॉर्म्स होती हैं, किसकी, बी की, बी वॉज बीन ये इसकी खुद की स्वयं फॉर्म होती है। जैसे कि मैं अगर मैंने यहीं पे डू की बात कर लूं तो डू, डिड और डन, डू डिड डन, ये क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है। जैसे कि हम कहते हैं ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज डन, दिस इज डन। यहां पर अगर मैं हैव के बारे में बात करूं, हैव, तो हैव एक फॉर्म होती है खुद, उसके बाद होती है उसके बाद होती है हैड, इसकी सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। Did you get this? इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है। तो ये थी क्या हमारी, ये हमने किसके बारे में बात किया पूरा, ये हमने बात की पूरी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। मे बी आपको पता हो ये इज एम आर आप जानते हो, बट आई होप कि आप ये ना जानते हो, आप जानते भी हो सकते हो, बट मोस्टली पीपल्स डज नॉट, मोस्टली पीपल डू नॉट नो अबाउट दैट, so that's why I had just let you know about that. Okay, so these all words, ये क्या है मैंने बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया मैंने बताया आपको प्लूरल फॉर्म्स के बारे में। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे ये होते हैं, देख लो एक बार। हमारी अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी ये होती है सारी। सो शुड आई रब दिस, या आप बैक करके देख लेना वीडियो, डोंट वरी, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। इस चैनल से बने रहिए, आपको सब मिलेगा, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर।
and please do subscribe to our channel also. Okay. ओके अगर मैं अब यहां पर बात करता हूं किसकी, इज एम आर की, इज एम आर का यूज क्या होगा, इज एम और आर, इज एम आर का यूज देखेंगे हम अब। इज एम आर की इसी ऑर्डर में आपको यहां पे मैं हिंदी भी लिखूंगा। ओके इसी ऑर्डर में मैं हिंदी भी लिखूंगा, लाइक है, और हो। इसकी है, एम की हूं और आर की हो, राइट। अगर मैं इसके बाद में आपको बेसिकली एक छोटा सा रूल दे दूं, क्या दे दूं, रूल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है बट एक फॉर्मूला है, नॉट अ फॉर्मूला के, बट इसके अकॉर्डिंग इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, आपको किसका, सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको बताए थे ना अभी, एज एम आर, आई वी यू, दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स प्लस उनमें से यूज होगी हमारी एज एम आर, सब्जेक्ट्स के बाद एज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी एज फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहां पर एम फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा आर फॉर्म। गॉट इट? स्लैश में लिख देते हैं इसको, कोई नहीं। और अगर मैं बात करूं यहां पर इसके बाद ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्ट बट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। मैं आपके बाद में, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। ओके अगर हम इसके अफर्मेटिव का रूल देखेंगे हम किसका, अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, अफर्मेटिव, अगर मैं अफर्मेटिव की बारे में बात करूं तो सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। लाइक मैं अगर आपसे बोलता हूं लाइक वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, राइट, वह ईमानदार है, तो कैसे बनाओगे, प्लीज ट्राई टू मेक दैट। पॉज करिए वीडियो को और बनाइए, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ओके तो लाइक मैं बोल रहा हूं लाइक ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, राइट। और एग्जाम्पल चाहिए आपको, ओके टेक द मोर एग्जाम्पल। मैं बात करूंगा लाइक आपसे, आप समझदार हो, आप समझदार हो, आप समझदार हो, तो यू आर इंटेलिजेंट, you are intelligent, wise we can say। ओके अगर हम यहां पर मैं बात करता हूं नेगेटिव की, किसकी, नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या होगा, कैन यू टेल मी, नेगेटिव में क्या होने वाला है। तो नेगेटिव में होगा, इसका रूल क्या होगा नेगेटिव का, अलग मार्कर से यूज करते हैं, ज्यादा अच्छा विजिबल होगा। तो नेगेटिव रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लग जाएगा सिर्फ, क्या, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, लाइक यह टेबल नहीं है, यह टेबल नहीं है, राइट। सो कैसे बोलोगे आप इसको, वह टेबल नहीं है। पॉज करिए, ट्राई करिए,
सो इट इज नॉट अ टेबल. It is not a table because table is a countable thing, so we'll have to use a here article. अगर यहां पर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, मैं लालची, मैं लालची नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं. सो आई एम नॉट ग्रीडी. वॉट? आई एम नॉट ग्रीडी. विजिबल तो हो रहा है ना, आई एम नॉट ग्रीडी, राइट? तो आई एम नॉट ग्रीडी. क्लियर? अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन्वर्जन की, इन्वर्जन को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. तो ले कहते हैं ना, बहुत सी बुकों में लिखा हो रहता है लाइक इन्वर्जन. तो इन्वर्जन कुछ भी नहीं है, इन्वर्जन जस्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, उसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी. अगर मैं इंटरोगेटिव के बारे में बात करूं, इंटरोगेटिव, 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 इंटरोगेटिव कह दूं मैं इसको, या फिर मैं इसको कह दूं इन्वर्जन. मैं फिर इसको मैं इन्वर्जन कह दूं, बात सेम है. अगर मैं इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं तो इज, एम, आर, इनमें से कुछ, आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब्स निर्धारित होंगी कि आपको क्या यूज करना है. अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको एम का यूज करना होगा. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इज का यूज करना होगा. अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर का यूज करना होगा यहां. क्लियर? लाइक क्या आप सुंदर हो? क्या आप सुंदर हो? और एक और बात, यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस और इन्वर्जन सेंटेंसेस में आप कभी फुल स्टॉप मत दीजिएगा. फुल स्टॉप आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा. सो आर यू ब्यूटीफुल? विजिबल होगा, ओके, कोई नहीं. आर यू ब्यूटीफुल? आर यू ब्यूटीफुल? सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इज एम आर. इज एम आर का कंप्लीट है ये. दिस इज अ कंप्लीट थिंग्स ऑफ इज एम आर. क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, आई एम रबिंग इट. ओके, अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी, वॉज वर की. वॉज वर, इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी था, थी, थे, एसेट्रा, ETC, राइट? अगर मैं बारे में बात करता हूं इसकी, हमारा वॉज किसके साथ यूज होगा? वॉज यूज होगा सिंगुलर प्लस आई. आई के साथ भी यूज होगा हमारा वॉज. अगर मैं यहां पे बात करता हूं ये किसके साथ यूज होगा, तो ये होगा प्लूरल के साथ. प्लूरल के साथ हमारा क्या यूज होगा? वर. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा यहाँ पे. in this basic or in this was words, like I is considered as a subject, as a singular subject. That's why we are just using it here. Okay. अगर मैं बारे में बात करता हूँ इसके अफर्मेटिव के रूल के बारे में बात करूं, सब्जेक्ट प्लस was स्लैश वर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एग्जाम्पल, मैं भूखा था. सो
मैं भूखा था, हाउ वुड यू मेक? पॉज द वीडियो एंड जस्ट प्लीज ट्राई टू मेक दैट. लाइक आई वॉज हंग्री. I was hungry, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. राम अमीर था. सो राम वॉज रिच. ऐसे अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव की, जल्दी करते गाइस नहीं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी. ऐसे प्रॉमिस यू कि मैं आपको पूरा बेसिक एक ही वीडियो में दूंगा, सो दैट आई एम जस्ट मेकिंग दिस. ओके, अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा नेगेटिव. अगर मैं नेगेटिव के बारे में बात करूं, एग्जाम्पल, वह बेईमान नहीं था. वह बेईमान नहीं था. सो ही वॉज, ओके यहां देते हैं, he was not dishonest. He was not dishonest, right? And now if we just talk about another example of this, और या फिर एक एग्जाम्पल इनफ है. इफ इज इट इनफ देन ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. फिर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की. इंटरोगेटिव का रूल क्या होगा? वॉज स्लैश वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. इज इट विजिबल? तो है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर बाद में. ये आपको विजिबल होनी चाहिए. ओके, आई होप इट इज विजिबल. ओके, जस्ट लेट्स हैव अ एग्जांपल ऑफ दिस. क्या राम पागल था? सो वॉज राम मैड? वॉज राम मैड? ओके, सो दिस इज कंप्लीट वॉज वर. डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में बात हम बाद में करेंगे. अभी आपको डब्ल्यूएच फैमिली की इतनी जरूरत नहीं है. नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा और उतने डिटेल में, प्रॉमिस है मेरी. ओके, लास्ट हमारा बेसिक जो था हमारी हेल्पिंग वर्ब्स का, वो रह गया. वो कौन सा है? वो है हमारा will be, shall be. क्या है? shall be, will be. इसका क्या होगा? बनेगा, रहेगा, होगा. इसकी हिंदी ये सब चीज हो सकती है, एसेट्रा. बनेगा, बनेगी, बनेगा, रहेगा, रहेगी, रहेगा, होगा, होगी, होगा. अगर मैं इसकी एक मेन थिंग्स लाइक हम शैल बी का यूज किसके साथ करेंगे? शैल बी का यूज हम सिर्फ आई और वी के साथ यूज करेंगे. क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बिकॉज शैल बी
आई और वी आर नोन एज फर्स्ट पर्सन, क्या आर नोन एज फर्स्ट पर्सन बिकॉज दे आर फर्स्ट पर्सन, दे आर फर्स्ट पर्सन, इसलिए हम आई और वी का यूज किसके साथ करेंगे, सेल बी के साथ, राइट। बाकी आई और वी को छोड़कर सबके साथ किसके, विल बी का। ओके अगर मैं आपको रूल दूं, सब्जेक्ट प्लस विल बी स्लैश शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे अफर्मेटिव का रूल है, ये मत चले जाना यहां पर। सब्जेक्ट विल बी शैल बी ऑब्जेक्ट, राइट, ये अफर्मेटिव का रूल है हमारा। लाइक वह पुलिस बनेगा, वह पुलिस बनेगा, सो ही विल बी पुलिस मैन, he will be policeman, right। अगर हम एक सेल्बी का एग्जांपल भी ले लेते हैं, हम सुंदर बनेंगे, या हम नर्स बनेंगे, नर्स बनेंगे, सो वी शैल बी नर्स, राइट। अगर मैं बात करूं किसकी, अब नेगेटिव की, नेगेटिव यहां करते हैं, नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, ध्यान से देखना, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, तो शैल नॉट बी होगा। ओके पसीने कितने आ रहे हैं यार, लाइक हम अपराधी नहीं बनेंगे, we shall not be criminal, we shall not be criminal, right। और हम अगर लास्ट आखिरी बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव की, एक एक एग्जाम्पल बहुत है गाइस, ठीक है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आपको स्ट्रक्चर बता ही दिए, अब आप खुद कर सकते हो जो भी आप चाहते हो, एक नहीं 10 नहीं हजारों सेंटेंस आप खुद अपने आप से बना सकते हो। इंटरोगेटिव will slash shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। लाइक क्या वह वकील बनेगा, सो विल ही बी
लॉयर, विल ही बी लॉयर। मैं बोल रहा हूँ अगर ये विजिबल ना हो तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, ये विल ही बी लॉयर, क्या वह वकील बनेगा, तो क्या वह वकील बनेगा, तो विल ही बी लॉयर। ओके गाइज, सो दिस वाज आवर कंप्लीट जिसे कहते हैं कंप्लीट बेसिक। इसके बाद हम टेंस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं इजिली। ओके, सो दिस वाज आवर बेसिक। आई हैव टोल्ड यू अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. I hope you will like this video, and if you like this, please do subscribe to our channel and please press the bell icon so that you will not miss further or any notification. Okay, so thank you so much guys for being patiently with me, and guys thank you so much for 120 subscribers. Thank you so much. Bye bye.